Hello everybody, welcome back to our class of learning mathematical concepts. So class in our chapter of sets we have completed almost all the content and now we are into the final topic, and it is the most important topic where one question definitely asked in the examination in 4 to 6 marks category, and this topic is the practical problems on set operations. So here the questions will be given in the form of word problems, and there we have to apply either some standard results or the use of Venn diagrams. So let us see some important results on the number of elements on the sets. So some important results, we are going to learn some important results on the number of elements in the set. So first one is, if suppose we take three sets, if A, B and C are the finite sets and U be a finite universal set, then the number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B. That is the common element. Now we can understand this by a Venn diagram also. Suppose I make a Venn diagram in this manner. I'll take three sets. Suppose I am taking here two sets A and B. Suppose this is A and this is B and this is universal set. ठीक है, तो I told you that number of element in A union B, that means we have already learned this shading region denotes the region of A union B. And here if I want to know how many elements are there in the shading region, so this is equal to number of element in A. You can see number of element in A plus number of element in B, right? But this portion has been counted two times, one along with A and other time along with B. So therefore we have to remove one part. So that is why minus of number of element in A intersection B, because this portion A intersection B has been counted two times. So that is why we have eliminated one time. अब अगर इसके अंदर मैं स्पेशल केस ले लूँ, if A and B are disjoint sets. डिसजॉइंट सेट में ए और बी दोनों अलग अलग सेट होते हैं, यानी इंटरसेट उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. तो जब ये कॉमन एलिमेंट होगा नहीं तो ये वाला पार्ट अपने आप ही जीरो बन जाएगा. तो इन दैट केस therefore number of element in A intersection B will be 0, and in that case the number of element in A union B will be equal to n of A, means number of element in A plus number of element in B. तो उस केस में ये रिजल्ट ये बन जाएगा. क्लियर है? तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट रिजल्ट. अब अपन लेते हैं सेकंड रिजल्ट. सेकंड रिजल्ट में हम क्या करेंगे, A माइनस बी लेंगे. सेकंड रिजल्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी. अब A माइनस बी में क्या होगा, इट विल बी, अगर इसका अगर वेन डायग्राम बना लें सबसे पहले तो देख लो आप वेन डायग्राम में क्या बनेगा. ये A है और ये B है, A और B, और ये यूनिवर्सल सेट है. तो नंबर ऑफ A माइनस बी का मतलब है ऑल द एलिमेंट लाइंग इन A बट नॉट इन B. तो A में ये वाला पोर्शन हो गया. अब ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, यानी ये पूरा पार्ट. इस पूरे पार्ट में से ये वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है. तो माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो ये अपना सेकंड रिजल्ट हो गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया. क्लियर हो गया, आपको साफ पता पड़ रहा है. ये वेन डायग्राम आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट n माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस ए निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ये बन जाएगा. क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल आसान चीज है ये. और अगर हमें ये निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A
डेल्टा बी। अब ए डेल्टा बी में आपने पता है क्या होता है, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, या इसको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। सिमेट्रिक डिफरेंस इसको बोलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का आपको ये पता ही है कि कैसा होता है, तो वेन डायग्राम। तो इसका वेन डायग्राम अगर आपने देखा होगा तो इसका वेन डायग्राम ये होता है, ये हमने बनाया ए, ये बनाया हमने बी, ए और बी, और ये यूनिवर्सल सेट है ये। तो ये वाला पार्ट होता है, याद है आपको ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी विल बी इक्वल टू व्हाट। एक बार हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये वाला पोर्शन हमने दो बार काउंट कर लिया, लेकिन अब मुझे एक बार भी नहीं चाहिए, दोनों बार हटाना पड़ेगा। तो दोनों बार हटाना पड़ेगा, तो -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। तो अब फिफ्थ रिजल्ट अपना आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ये तो है ये तीन एलिमेंट। देखो मैं इसको वेन डायग्राम पहले बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि अपन को ये रिजल्ट आएगा क्या। तो वेन डायग्राम के अंदर हम तीन सेट बनाएंगे। अब की तीन सेट ले रहे हैं ना हम, ए बी और ये सी, ए बी और सी ये है। अब इसके अंदर अगर मैं इसको शेडिंग कर देता हूँ तो अपने पास शेडिंग पोर्शन आपको पता ही है क्या होता है इसका, ये पूरा पूरा आएगा ये पोर्शन, ये आपको दिख रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी में। अब इसके अंदर रिजल्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कंप्लीट ए प्लस बी and the number of element in C. So you can see that how many portion we have counted more than once. This portion overlapping of A and B, ये दो बार आ गया, A में भी आ गया तो B में भी आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ही बार काउंट करना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट, ये वाला पोर्शन दो बार आ गया तो ये B इंटरसेक्शन C, और फिर ये वाला पोर्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन है। ये तो दो बार आ गया था, हमने काउंट कर लिया। तो ये पोर्शन था। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये दिख रहा है आपको, ये तीन बार काउंट हुआ था। ए में भी था, बी में भी था और सी में भी था। हमने जब ये कॉमन पोर्शन हटाया तो तीनों बार हट गए, तीन बार आया था तीनों बार हट गया, लेकिन ये पूरा खाली हो गया। पर एक बार तो चाहिए हमें, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हमें इंक्लूड करना पड़ेगा वाइल राइटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है तीन सेट का, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनते हैं वो तीन सेट वाले ही बनते हैं। तो आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है इस तरह। या तो हम या तो फॉर्मूला लगाए करेंगे, नहीं तो मैं आपको जब बताऊंगा तो वेन डायग्राम में एंट्री करना बता दूंगा, तो वेन डायग्राम से आप डायरेक्टली कर पाएंगे। अब अगर इसी के अंदर अगर मैंने केस डाल दिया इसके अंदर, इफ ए बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, अगर डिसजॉइंट सेट है इसका मतलब इसमें कॉमन पोर्शन कुछ होगा नहीं। तो इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी will be equal to 0 and that will also be equal to number of element in B intersection C will be equal to number of element in C intersection A will be equal to number of element in A intersection B intersection, क्योंकि कॉमन पोर्शन कहीं आएगा ही नहीं। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि आपस में बिल्कुल अलग अलग है। तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये जनरल केस है, सिंपल है। तो सिक्स प्रॉपर्टी देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। एग्जैक्टली टू मतलब जो एग्जैक्टली दो में हो,
ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये समझने के लिए हम वापस वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। ये मैं वेन डायग्राम बना के आपको बता रहा हूँ कि ये वाला रिजल्ट कैसे आया। ठीक है, ये अपने पास ए का पार्ट हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। नाम दे दो ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम ये देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली टू वाले मतलब कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन। ये देखो ए और बी का कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ए और सी एग्जैक्टली ए और सी का पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन जो एग्जैक्टली बी और सी का पोर्शन है। क्लियर है ये। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पार्ट। इसके ये वाला पार्ट के अंदर ये तो चाहिए था पर ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, और ये जो खाली पार्ट है वो कौन सा है, तीनों का कॉमन एलिमेंट है। तो ये हमें एक बार हमने ये काउंट किया जिसके अंदर ये नहीं चाहिए था, तो ये काउंट किया पर एक बार नहीं चाहिए, ये इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए। दूसरे वाले में बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पोर्शन ये है, तो ये हमने काउंट कर लिया पर ये नहीं चाहिए था, ये 2 बार हमको हटाना भी है। तीसरी बार में हमने ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये देख लो मैंने ए इंटरसेक्शन बी में ये पोर्शन लिया, बी इंटरसेक्शन में ये पोर्शन लिया और सी इंटरसेक्शन सी में ये वाला पोर्शन लिया। तो 3 बार ये वाला एलिमेंट भी ले लिया, पर मुझे तो एक बार भी नहीं चाहिए, तो ये तीनों बार ये 3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस भी हो गया। तो इसलिए आपको रटना नहीं है। अगर ये रिजल्ट आप रटने के बजाय आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आप ये खुद ही अपने ये रिजल्ट आप खुद बता पाओगे कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट होंगे क्या। क्लियर है। अभी हम आप चलते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी पे। अब देखो 7th वाली प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। पिछली बार में था एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट और इस बार में एग्जैक्टली 1, यानी सिर्फ एक में उसमें कोई भी पोर्शन कॉमन ना हो। तो देखो ये मैंने शेड किया है वेन डायग्राम में, एग्जैक्टली ये जो ए वाला पोर्शन है खाली ए का ही पोर्शन है, किसी और साथ कॉमन नहीं है। इधर ये वाला शेडिंग पोर्शन खाली बी का ही कॉमन वो पार्ट है, यानी बी का ही पार्ट है और किसी का कॉमन पार्ट नहीं है। और इसी तरह ये सी का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी ये वाला पूरा पार्ट लिया हमने, ये वाला पूरा पार्ट में हमने ये भी काउंट कर लिया जो हमको हटाना है बाद में, यानी माइनस करना है। इसी तरह प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वापस ये 3 पोर्शन कॉमन हो गए जो नहीं चाहिए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तो ये हमने पूरा पोर्शन तो ले लिया। अब इसमें जो जो हटाना है माइनस करेंगे। तो ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला पोर्शन हमने 2 बार काउंट किया, ए के साथ भी काउंट किया था, बी के साथ भी काउंट किया था, तो मैंने 2 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। ठीक है, जब हमने ए और बी दो किया था ना, ए के साथ भी कर लिया था, बी के साथ भी कर लिया था, ये हटा दिया। इसी तरह नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट भी हटा दिया। और इसी तरह ट्वाइस ऑफ ये वाला पार्ट भी हटा दिया। अब ये ट्वाइस करके जब हमने हटाया तो हमने ये जो कॉमन पोर्शन था तीनों में ए बी सी तीनों साथ काउंट किया था, लेकिन जब हमने ये 2 बार इसका 2 बार इसका 2 बार इसका हटाया तो यानी ये 6 बार माइनस हो गया, यानी 3 बार एक्स्ट्रा आया था 6 बार माइनस हो गया। इसका मतलब अभी ये -3 टाइम्स ये पोर्शन चल रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए +3 टाइम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये लिखा। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरह थोड़ा दिमाग में बिठा लो, तो आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम देखते ही आप ये बता दोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी सी क्या होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो मैं फार्मूले से नहीं करूँगा, जब मैं क्वेश्चन करूँगा देखना मैं वेन डायग्राम से यूज़ करूँगा। ये तो मैं आपको ये फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बुक में है फार्मूला, तो इसलिए मैं आपको एक फार्मूला से भी फेमिलियर करा रहा हूँ, लेकिन हम ये फार्मूले का यूज़ करेंगे नहीं, सीधे डायरेक्टली वेन डायग्राम से ही मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊँगा। अब ये लास्ट में 2 और बची हैं, सिंपल सी हैं दोनों। 8th वाला प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उस समय क्या हो जाएगा, अगर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, यानी इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट बराबर होंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो डैट मीन्स
टोटल में से इसका पोर्शन माइनस कर देंगे। तो टोटल पोर्शन मतलब यूनिवर्सल सेट, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ये वाला पोर्शन, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह दूसरी डी मॉर्गन्स लॉ क्या थी, 9th वाले प्रॉपर्टी के रूप में लिख रहा हूँ, एन ऑफ, ये एन है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और फिर कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ टोटल यानी यूनिवर्सल माइनस ये वाला पार्ट, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये सब सिंपल से रिजल्ट्स हैं। अब हम इसका यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के रूप में कि कैसे आपको वेन डायग्राम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। इफ x एंड y आर द टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 45, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y 76 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज 12, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट y, ये पता करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला हम देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट लिया था, पहले तो मैं फॉर्मूले से करूंगा और फिर मैं इसको वेन डायग्राम से भी करके बताऊंगा कि वेन डायग्राम में आपको इससे कैसे निकाल पाएंगे। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, यहाँ पे a और b जगह x और y है, तो x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था, रिजल्ट नंबर 1। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अपन डायरेक्टली यूज कर लेंगे इसके अंदर। तो क्या क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि x यूनियन y के अंदर 76 है, तो ये 76 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट x कितना दे रखा है 45, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y पता करना है अपने को, अपन मान लिया सपोज ये x है नंबर ऑफ एलिमेंट, माइनस इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y में 12 है। तो यहाँ से एक सिंपल इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन x में, जहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले 76 45 माइनस 12 करेंगे, कितना हो जाएगा 33, 45 माइनस 12 प्लस x की वैल्यू निकालना है तो 33 को इस तरफ ले आएंगे। जब इस तरफ से लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 76 माइनस 33 इज इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 43। तो इस तरह अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज 43। तो ये अपने पास ऐसे, ये तो फॉर्मूले से आ गया। अब इसी को अगर मुझे वेन डायग्राम से करना है, मतलब फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं होना चाहे, तो हम वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट के लिए बॉक्स बना लिया हमने, और फिर इसके अंदर हमारे पास दो सेट काम में आ रहे हैं, एक का नाम है x और एक का नाम है y, x एंड y। अब वेन डायग्राम में जब एंट्री करना हो तो आपको बस ये क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम एंट्री करेंगे मोस्ट कॉमन पार्ट। अब ये दो सेट है, तो दो सेट का मोस्ट कॉमन पार्ट ये वाला इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट थे। तो आप देख सकते हो, अभी मैं इसको फोल्ड करके बताता हूँ कि अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था। तो ये देखिए, पहले तो हमें कॉमन पोर्शन बनना है। कॉमन पोर्शन में x इंटरसेक्शन y में कितने हैं 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12। फिर इसके बाद सिंगल एलिमेंट, सिंगल सेट, तो दो का कॉमन पोर्शन, फिर अब एक का, एक यानी x के अंदर कितने होने चाहिए, टोटल 45 होने चाहिए। तो x के अंदर टोटल 45 होने चाहिए, तो 12 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आएंगे ओनली x में कितने आ जाएंगे 45 माइनस 12, ये वर्बल कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 33। तो ओनली एलिमेंट इन x विल बी 33 एंड ओनली एलिमेंट इन y, आपको y का टोटल में से 12 तो आ गया, यानी 12 से तो ज्यादा ही है, ये अपने को पता पड़ गया, लेकिन टोटल कितने y में ये पता नहीं। तो ओनली एलिमेंट ऑफ y को हमने मान लिया था कि एलिमेंट x है इसके अंदर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी x और y के अलावा बाहर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, यानी यहाँ पर 0 है, कुछ दे नहीं रखा है, इसका मतलब 0। तो अब फ्रॉम द वेन डायग्राम अपने पास क्या हो जाएगा, ये जो टोटल x यूनियन y ये दे रखा है, नंबर ऑफ x यूनियन y 76 है। वेन डायग्राम एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
इन क्वेश्चन ये पूरा पोर्शन मिला करके 76 होना चाहिए, यानी 33 प्लस 12 प्लस एक्स मिला करके 76, क्योंकि एक्स यूनियन वाई यानी ये टोटल मिला करके 76 होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन अपने पास सीधे यहाँ से बन जाएगी वेन डायग्राम से, हम फॉर्मूले पे कोई डिपेंड ही रहे और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 76। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 76 माइनस 45 कितना बन जाएगा ये 1 और ये कितना बन जाएगा 3। बट अपने को क्या पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y जो वो है 12 प्लस एक्स है, क्योंकि 12 भी y में आ रहा है और ये x वाला पार्ट ओनली एलिमेंट इन y भी आ रहा है, तो 12 प्लस एक्स, इसका मतलब 12 प्लस 31 जो मिलाकर कितना हो जाएगा 43। तो दोनों ही केस में, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज 43। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, चाहे आप वेन डायग्राम पर ये सिंपल रिजल्ट अगर आपको याद है तो छोटे क्वेश्चन में तो रिजल्ट से कर देंगे, बाकी जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर वेन डायग्राम से आसान रहता है। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था तो लगभग बराबर स्टेप ही लग रही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लेट ए एंड बी द टू सेट्स सच दैट number of element in A is 35, number of element in A intersection B is 11 and number of element in A union B का whole complement है ये ना, ये थोड़ा सा मेरा ओवर राइटिंग हो गया है। A union B का whole complement is 17 and if number of element in the universal set is 57 then find number of element in B, number of element in A minus B and number of element in B minus A। अब इस तीन क्वेश्चन को या तो तीन अलग अलग फॉर्मूलेस के हिसाब से हम पहले देखें कौन सा है फॉर्मूला लगेगा उससे करें या फिर वेन डायग्राम से करें। तो मैं आपको वेन डायग्राम से करके बताऊंगा। इस वेन डायग्राम से यूज़ करने पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये थोड़ी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप पहले ये देख लो कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये क्या होगा, सोल्यूशन में सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, आपने अभी लास्ट में आपने दो लॉ पढ़ी थी, से हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से ये हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से ये बन जाएगा। अब इसके अंदर ये दे रखा है आपको 17, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में दे रखा है आपको 57 और ये आपको पता पड़ जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ये आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा 57 माइनस 17, तो मिला कितना हो जाएगा ये 7 गया 0, 5 में 7 गया तो 40। तो ये अपने को ये पता पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है। डायग्राम बनाते हैं हम। वेन डायग्राम के अंदर हम एंट्री करेंगे, ये तो यूनिवर्सल सेट के लिए बन गया। यहाँ पे दो सेट है ए और बी, ये ए और बी। वेन डायग्राम में बताया था सबसे पहले अपन मोस्ट कॉमन पोर्शन की एंट्री करेंगे। मोस्ट कॉमन पोर्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 11, तो सबसे पहले इसमें 11 भर दिया। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, पूरा ए के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए 35, तो 11 ऑलरेडी लिख चुके हम, तो 35 माइनस 11 करेंगे कितना हो जाएगा 35 माइनस 11 24 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पता करना है, तो 11 तो ऑलरेडी आ रहा है। इस पोर्शन में कितना है ओनली एलिमेंट बी अपने को पता नहीं है, अपन इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो फ्रॉम द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो है वो 24 प्लस 11 प्लस एक्स आना चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम ऑलरेडी कितना निकाल चुके हैं 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 35, तो 35 प्लस एक्स हो जाएगा और x की वैल्यू हमें यहाँ से पता पड़ जाएगी कि x इज इक्वल टू 40, कितना हो जाएगा x वैल्यू 40 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्या है 11 प्लस x, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज 11 प्लस 5
इज इक्वल टू 16। तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पता पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये पता पड़ गया आपको। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो तो फाइंड करना है वो क्या है, नंबर ऑफ ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट जो है वो फाइंड है नंबर ऑफ ए माइनस बी। और नंबर ऑफ ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ है, ये वाला पोर्शन ए के एलिमेंट ए पर बी का एलिमेंट ना हो तो क्या हो जाएगा, खाली 24 हो जाएगा ना। तो फ्रॉम द वेन डायग्राम, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी कितना हो जाएगा आपके पास, 24 हो जाएगा। सीधे ही पता पड़ रहा है, आपने कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी तरह तीसरा जो था, सिमिलरली तीसरा जो था नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए एक्स है, फ्रॉम वेन डायग्राम नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए इज एक्स, और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितनी निकाली थी एक्स की वैल्यू हमने, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, कहाँ निकाली थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली थी 5। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। तो इस तरह अपने पास तीनों आंसर आ जाएंगे। कितना आसान है, एक बार वेन डायग्राम में एक बार एंट्री करनी आ जाएगी तो उसको रीड करके अपन तीन का जितने भी क्वेश्चन पूछा जाए अपन सब बता सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर 3 सेट के भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे इसके क्वेश्चंस।